आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशल साइंस का डिबेट करेंगे क्लास 7 का, जिसमें हमारे 8 कंटेस्टेंट अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन देंगे। आप करिए। यस। उधर दीजिए ऑडियंस को। हाँ, उधर देखिए। Myself Suharsh Raj from class 7. I am Prakash Kumar from class 7. I am Ajay Ansari from class 7. Myself Suman Yadav from class 7. यस, तो ये 8 हमारे कंटेस्टेंट होने वाले हैं सोशल साइंस के। तो पहला हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिविक्स का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पम्मी पटेल के लिए। डिफाइन मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है? A newspaper, radio, newspaper. It is also the examples of mass media. Because it's help we spread all the news millions of people At the same time. At the same time. हाँ, तो मास मीडिया से हम लोग एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, आप बोलिए। It is a mass of country and world. इट इज अ मास ऑफ कंट्री एंड वर्ल्ड। It reaches mass of people and हाँ, इट रीचेज मास ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं। सरकार इसी का ये करती है, क्या करती है, सहारा लेती है अपने बातों को पहुंचाने के लिए। न्यूज में डाल देगी या रेडियो में डाल देगी, टेलीविजन पे दे देगी, जो मास मीडिया का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ओके, सिट डाउन। चलिए सृष्टि श्री, आप बताइए व्हाट डज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स? Freedom of expression means it is totally important in democracy because people have to express their opinion in front of government. If they don't, so it can be possible that government ignore themselves. So they have to show their opinion in front of government by. Yes, freedom of expression is necessary in democracy. Like it is also our fundamental right. One of the fundamental right. Very good. Sit down. Okay, Abhinav Patel. Explain the Right to Information Act, RTI Act. RTI Act was passed in October 2005. Yes. In this act, the people has right to know the legal information about the government. Yes. वेरी गुड। काफी रिवोल्यूशनरी एक एक्ट था, कानून पास किया गया था सरकार के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसमें आप जो है सरकार के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई डाल के निकाल सकते हैं। वेरी गुड। यस। And for 30 days, the people give the government of the. हाँ, गवर्नमेंट को जो है 40 डे के अंदर आरटीआई का जवाब देना होगा। और कुछ? चलिए, कौशल अंसारी, योर क्वेश्चन इज मीडिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने के लिए मीडिया काफी अहम है। कैसे? Because media is act link between people and government and as watchdog. It is information about government to reach the people of millions of people. यस, और कोई ऐड करना चाहता है? यस, शुभम। In this. हाँ, मीडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। कैसे? In this role, because media do question to any minister what is wrong law and what is right law, which law is benefits of law is good for people or bad for people. Yes. Media is the fourth pillar of the democracy. Yes, media is also called fourth pillar of democracy. चलिए सहर्ष बताएंगे व्हाट इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी थर्ड कौन है? डेमोक्रेसी के बाकी थर्ड पिलर कौन कौन से है? मीडिया तो फोर्थ हुआ। चलिए। हाँ, Legislature, executive, judiciary. जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी इज कॉल्ड Function the legislature make हाँ, and तीनों इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। यस, Check and balance दोनों. चेक एंड बैलेंस करते हैं, सब एक दूसरे का काम देखते हैं। ओके, प्रकाश यादव, सिट डाउन। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? State legislature is fundamental. फंडामेंटल नो।
Yes, Pammi Patel. State legislature is help to the making of law. हाँ, law making body for the states. All the people are equal into the eye of our Allah. Not difference making in people in the law. It is law making books is making by Dr. Bhimrao Ambedkar. Yes, और कोई ऐड करना चाहता है? Yes. Sometimes there are one state legislature house in the state, and sometimes there are two houses in the Yes. state. कहीं कहीं जो बड़े स्टेट होते हैं वहाँ 2 लेजिस्लेचर होते हैं, Like in जिसे बाई India. कैमरा लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधानसभा एवं विधान परिषद. Yes, Srishti. Like Bicameral states who have bicameral legislature are Bihar, Jammu and Kashmir. Yes, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. Yes. चलिए, sit down. आप लोग sit down. हाँ, चलिए, very good. The appointed of this is appointed by the President of India. क्या अपॉइंट किया जाता है? इसको स्टेट लेजिस्लेचर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, हाँ कि वहाँ पे चुन के जाते हैं. हम लोग एमएलए जिनको चुनते हैं, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. उसको प्रेसिडेंट चुनते हैं नहीं, लोग डायरेक्ट वोट देते हैं. पाकिस्तान का मैच के बारे में उसको बात कर रहे हैं. लोग डायरेक्ट वोट देते हैं और एमएलए को चूज करते हैं. प्रेसिडेंट चूज करते हैं गवर्नर को, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, और वो लेजिस्लेचर के पास नहीं होते हैं. चलिए, शुभम यादव, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट? Governor is a constitutional head of the state बिकॉज because he has all the constitutional power. He can interpret the constitution. He is equal to the President. He equal तो नहीं, मतलब सेम एज प्रेसिडेंट. हाँ, लाइक अ प्रेसिडेंट. जैसे प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है कंट्री को लेके, वो स्टेट को लेकर वो state गवर्नर governor के के पास हाँ, वो भी नॉमिनल हेड होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल होते हैं. हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं. हाई कोर्ट के जज को वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. वैसे हाई कोर्ट के जज. यस. Generally, he conducts in the front of the Prime Minister cabinet. हाँ, जो कैबिनेट रहता है, जो मंत्रालय होते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं. यस कृष्णा. वो गुनाह को भी माफ कर सकते हैं. गुनाह को माफ करने का गवर्नर के पास नहीं होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है. वो फांसी को माफ वो कर हाँ, सकते वो हैं. जो हैंग टिल डेथ का जो ये मिला हुआ है, उनको पनिशमेंट, उसको वो माफ कर सकते हैं. चलिए वाजिब, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी की ओर चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वायरमेंट? Environment is a term. It is termed by the French word environment. It means our surrounded. It means our surrounded environment. Environment. Our surrounding, which thing is called environment? Just like table, chair, and anything. हाँ, तो जो हमारे चारों ओर है वो क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट है. और कोई ऐड करना चाहता है? यस अभिनव. Environment consists of abiotic and biotic components. हाँ, बायोटिक, एबायोटिक, यानी निर्जीव और सजीव दोनों Yes. चीजें मौजूद होती हैं. Sir. यस. It have two types: natural environment and human-made. यस, ये भी अच्छा पॉइंट है कि इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के. एक नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे हम लोग पहाड़ देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, ये नेचुरल है. और जो हमने रोड बनाया है, जो बिल्डिंग बनाया है, Constructed by the human is called. और वो ह्यूमन इन्वायरमेंट है. चलिए कृष्णा ऐड करना चाहते हैं. ग्रीक्स वर्ड में उसे सराउंडिंग कहते हैं. हाँ, ग्रीक्स वर्ड से लिया गया है इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, हमारे चारों ओर. Yes, sir. बोलते हैं ना कि हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट कैसा है. तो हमारे चारों ओर जो भी दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है? किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का पार्ट है. ओके, किससे ने पूछा गया अभी? सहर्ष से. सहर्ष, चलिए एक बार और पूछेंगे. नेम द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ. There are 4 domains of the Earth: hydrosphere, lithosphere, lithosphere, biosphere, and atmosphere. यस, डिटेल में थोड़ा बताइए एक एक करके. The hydrosphere is the domain of water. The lithosphere is the थोड़ा बताइए वाटर का कितना % वाटर है अर्थ पे? There are about 1% water on the Earth. So it is known as blue planet. And the lithosphere is the domain of stone. Land. Because it comes from the Greek word lithos, which means a stone. There are 71% water and 29% land,
and the atmosphere is an envelope of air which surrounded the earth completely. There are 5 types of atmosphere. In the biosphere comes from the Greek word bios, which means life. Means when the land, water and air come to contact with each other, then it makes biosphere. They mix biosphere. Biosphere means which place where the life is spent. हाँ, जहाँ लाइफ पॉसिबल है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों लाइफ के लिए काफी इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट के पार्ट है, डोमेन्स कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और जहाँ तीनों कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। यस पमी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन? इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड में समझती है? Yes. किसे मालूम है? यस सृष्टि। Environment degradation means when our environment is get affected by some natural causes or by human causes. It's known as economical Environmental degradation. By floods, natural causes, floods and earthquakes, and by humans doing if deforestation वगैरह। तो जो जिस एक्शन से इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसे कहा जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, नेचर से भी हो सकता है, फ्लड आ गया, वोल्केनो आ गया, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जैसे एक्सीडेंट, पोल्यूशन, या फिर जो पैंडेमिक फैलता है, ये सारा चीज। वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या नेचुरल इन्वायरमेंट के क्या कंपोजिशन होते हैं? उसके मिश्रण क्या उसमें आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में? There are two composition of natural environment: biotic and abiotic component. Biotic component means living organism and abiotic component means non-living organism. हाँ, तो नेचुरल इन्वायरमेंट दो प्रकार के, एक तो जीवित और एक निर्जीव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं। यस। All the external things where we live and develop our characters. इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? खुद को डेवलप करते हैं। वेरी गुड। चलिए कौशल, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री का सवाल पूछते हैं, ठीक? हु वाज सादात खान? Sadat Khan was the governor of Awadh in 1722. उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? Sir, यस पमी। बुलुल मुल्क। और आप बताइए सादात खान के बारे में। He was also a Mughal officer, empire officer. He works. एक सेकंड रुक जाओ, बोल लो। He was a Mughal empire officer. He was a great officer of Mughal officer. He assumed his surname is called Mulk in 1728. मतलब क्या हुआ, जैसे मुगल जैसे वीक पड़े, when the मुगल became weak, he extended his independence. उन्होंने अपने को आजाद घोषित कर दिया। जैसे औरंगजेब का जब डेथ हुआ था ना 1707 में, उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने, जैसे आप सुने होंगे, हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, बंगाल के नवाब ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, अवध ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो वैसे ही सादात खान थे जिन्होंने अवध का स्थापना किया था। यस। Governor of Awadh appointed him, and he gave him a title as Burhanul Mulk. बुरहानुल मुल्क, हाँ। And he was officer in 1722 to 1732, and he was appointed an officer for his good services. गुड सर्विसेज के लिए जाना जाता हूँ मैं। और कोई है? यस। Sadat Khan is a Mughal officer which is appointed to governor of Awadh in 1722. He is rewarded for his service, and he obtained a title of Burhanul Mulk.
चलिए, तो वही तो बात बोल रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सहज से, डिस्क्राइब द राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी। शिवाजी के अंडर में मराठा ने काफी फल फूल रहे थे, कैसे? Under Shivaji, he makes a force of Marathas which capture the hills near forts near the Pune, and he also of बीजापुर। Bijapur. After that, he become so powerful. Then Bijapur, so he sent his one of the commander, Arfal Khan, but he was unsuccessful. Sir. Yes, Wajid. And he captured the Lahore, and his capital name was Raigad. And his soldier gorilla welfare. हाँ, उसके सोल्जर जो थे वो किसमें एक्सपर्ट थे? गोरिल्ला वारफेयर में, छुप कर वॉर करने में। यस। He also the capture of fort of Pune. पूना के फोर्ट को भी उन्होंने क्या कर लिया था? अपने कब्जे में ले लिया था। He created he created independence her kingdom, so he also make force army to independence their kingdom. ओके, सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के लिए, Which states became independent after decline of Mughal Empire? मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन से राज्यों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया? Decline of Mughal Empire, Magadh, Mysore, और यस सहस। Maratha, Awadh. ओके, अब इनको बोल दीजिए। Bengal and Awadh. बंगाल, अवध, हैदराबाद। चलिए, वेरी गुड। सिट डाउन। नेक्स्ट शुभम, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल समथिंग अबाउट इस्लाम रिलीजन। Islam, Prophet Muhammad was the founder of Islam religion, and the holy book of Islam religion is Quran, एंड पिलग्रिमेज स्थान बता दो, कहाँ वो लोग जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए? मुस्लिम में मॉस्क्यू में जाते हैं, मक्का। हाँ, चलिए सृष्टि बताएगी। Prophet Muhammad was the founder of Islam. The Quran Sharif is the holy book of Islam. The people who follow Islam are known as Muslims. There are several things they have to do regularly in their like 5 times namaz in a day. The places where they go for like Makkah and Medina for praying, and if they can afford, that's हाँ, they give donation. Yes, Pami. Prophet Muhammad 1270 to 62 AD, and the founder of Muslim Islam religion, is the meaning of Islam books is surrender and some question. Submission to the will Submission to the God. of the God. Okay, yes. And the Prophet Muhammad successor is called Khalifa. हाँ, जो प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो सक्सेसर आए उनको खलीफा कहा गया। ओके, ये कौन बता सकता है? इस्लाम के 5 ये क्या है? 5 मेन पॉइंट। यस, पमी। They take 5 times namaz. They pay up money to Donation to needy people. Third, they take roza. हाँ, keep fasting. They keep fasting to 30 days. roza. Month of Ramadan. मंथ ऑफ रमजान। और 4, they have to get pilgrimage if possible, मक्का और मदीना, If they can afford it. if they can afford। और 5वां क्या था? Yes. सब गरीब को गरीब को हाँ, गरीबों की इधर करना, दान करना। ओके, बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाजिद से, नेम द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। Quran Sharif is the holy book of Muslims. व्हाट वाज द नेम ऑफ मीराबाई हस्बैंड? Mirabai husband name is Rana Sanga Urf Bhoj. Raja Bhoj. राजा भोज।
हाँ, very good. Sit down. He is the ruler of Mewar, and he is princess of very luxurious. He married princess of- marries princess of very luxury life. हाँ, luxury life जीने दे. She did not attract the luxurious life. She was a true devotee of Lord Krishna cult. So she happy the Krishna cult Krishna through his lines and his. हाँ, मीराबाई जो थी वो fully devoted थी किसको? Lord कृष्णा को. Okay, आप दोनों में. आप बोलिए. Mirabai was princess of Rajput. हाँ, princess of राजपूत, राजपूत फैमिली की थी, ठीक है? Sit down. Okay. Sir, Yes. Mirabai expressed her deep love through many popular devotional songs. उन्होंने कई सारे भजन लिखे. Okay. Next question. शुभम यादव. Define a consumer. एक consumer कौन होता है? A man who buy goods for their use is called consumer. और Consumer who मतलब एक consumer can buy a wholesale product या फिर retail product. ओके, और कोई ऐड कर सकता है इसमें कुछ? आंसर तो उतना ही था. A person who buy goods for Their use. their own use, Yes. for their use is called consumer. Okay, Pammi, अब sit down. Define a weekly market. Weekly market. Weekly market is sometimes too dedicated in some heart. There the people are coming to buy their daily life uses things. It is special day specific day organized just at Somghat, Budghat, Monday. और कोई बोलेगा? Yes, सृष्टि. Weekly market is held on a specific day of a week, like Mangal Bazaar, Budh Bazaar. The people come here to buy their goods for their daily use. Okay, sit down. Yes. Generally, there comes local people who are in the village. Yes. It held at a public place. पब्लिक प्लेस पे किया जाता है किसी स्पेसिफिक डे को. Yes, sir. या तो वो वेडनेसडे को हो सकता है या फिर संडे को हो सकता है. वीकली मार्केट उसे ही कहते हैं जहाँ लोग अपनी जरूरत की चीजों को बाई कर सकते हैं. वेरी गुड. सिट डाउन. यस, कौशल अंसारी. वीकली मार्केट सॉरी व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल आखिर क्या ऑक्यूपेशन करते हैं अपने जीने के लिए? Tribal people is agriculture, herding, hunting, and fishing, एंड and trading. यस. They are totally dependent on natural resource. हाँ, वो नेचुरल रिसोर्स पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं. उनको बाहर से वो जंगल से जो मिलता है उनको खाने से लेकर जलाने को सारा वो लोग कहाँ से ऑक्यूपाई करते हैं? फॉरेस्ट से, नेचुरल चीजों से. यस. He live in आप लोग sit down. he live in river for their fertile They soil. live in the forest, river. He lives They live along the river. along river for their fertile soil and make a bricks for a building. Where people not easily go. हाँ, जहाँ लोग आसानी से जा नहीं पाते. remote area. यस. They totally depend on their region. They totally depend for the occupation for their region. हाँ, अपने रीजन पे ही वो डिपेंडेंट रहते हैं. How is the climate? क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है. Some of them settle. They have some got settled in temporary and some also dependent हाँ. as permanent. उनके कुछ सेटलमेंट टेम्परेरी होते हैं यानी कि वो नोमैड होते हैं, घूमते रहते हैं, या फिर वो लोग परमानेंट भी होते हैं. एग्रीकल्चरिस्ट जो बन गए उनको एक जगह सेटल होके रहना पड़ा. यस. They have not any type of discrimination in their caste. उनमें कास्ट सिस्टम नहीं होता. ट्राइबल पीपल में कास्ट सिस्टम नहीं होता. उनमें कोई बड़ा छोटा है. हाँ, He live together. और साथ में मिलकर रहते हैं. They believe in also one God. हाँ, वो लोग वन गॉड पे विश्वास करते हैं. ये भी पॉइंट लिख सकते हैं. यस. They were more equal in nature and they move place to place and sell their goods
and हाँ, कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेडर भी होते And there were हैं और some- वो लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट there होता were है। few settled agriculturalists, and some people also move place to place, and happy the people by their dances. ओके सिट डाउन। और चलो, तो एक बात हम बता देते हैं कि आप लोग अगर दिखाइएगा नहीं इस डिबेट में, क्या कहते हैं वो, उत्साह, तो जीतने का चांस आप लोग को नहीं है। प्रकाश आपको कह रहे हैं, चाहे कोई भी है, आप हाथ उठाइए, सर कहिए सर हम बताएंगे, हम पूछेंगे, तब ना होगा, नहीं तो ऐसे पीछे हो जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए, सिर्फ हाथ उठाएंगे, मुंह से आवाज आया तो वो कैंसिल। माय क्वेश्चन इज हु वेयर द गोंड्स? यस प्रकाश। Gonds are tribals. Total population is 14 lakhs. Gonds are one place. क्या गोंड्स आर वन प्लेस? यस सृष्टि श्री, sit down, आप sit down. Gods are the tribal people. Currently, they have 40 lakhs people. They mostly found in Maharashtra region, Maharashtra, Nagaland side. They live in dense forest. Gond means that hill. The Gond means hill, and that's. People of hill. The Yes. largest population of Gond in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गोंड्स है। ओके, यस अभिनव। In Chhattisgarh, there are 20% of the Gonds population in the region of Bastar. हाँ, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपको गोंड पॉपुलेशन मिलने को मिलेगा। Gonds believe in their own tribal god. हाँ, अपने ट्राइबल गोड पे वो लोग बिलीव करते हैं। ओके, ऑडियंस से कोई बताना चाहता है? यस कृष्णा। In Assam, Gonds name is Ahom. यस। In Assam, Gonds is called Ahom. हाँ, आसाम में जो है उनको गोंड्स को किस नाम से जाना जाता है? एहोम के नाम से। ओके, यस वाजिद। The Gonds are two tribes, Bhils and Nagas. ये सर नागास, कुछ बोलना चाहते हो फरहान? बोलो। हाँ, ये हो गया पॉइंट वैसे, लेकिन अच्छा है, 40 लाख उनका टोटल पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, वो भी बस्तर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। आप लोग आगे जाइएगा ना तो हिस्ट्री में पढ़िएगा, रिबेलियन ऑफ बस्तर के लोगों ने, गोंड के लोगों ने विरोध भी किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जब उनके जंगलों पे उन्होंने कब्जा करने लगे थे। तो It comes from Greek word which is known as konta, which means hill. No sir. ये भी ग्रीक वर्ड है, No sir, Telugu word. तेलुगु वर्ड है, जिसका कोंडा का जिसका मतलब होता है हिल पीपल ऑफ हिल। Gonds were live in very remote area where go is very hard. हाँ, वेयर गो नहीं, इससे जानते हैं सही वर्ड क्या हो सकता था? जहाँ पे कनेक्टिविटी काफी हार्ड होता है, जहाँ पे पहुँचना काफी हार्ड होता है। Connect with them. हाँ, हाँ। They can Extremely difficult to reach. हाँ, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीच, ये भी अच्छा है। They do not keep written records. हाँ, वो रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हाथ उठाएंगे। माय क्वेश्चन इज व्हाई इज सी वाटर सलाइन? सृष्टि श्री। The seawater is saline due to the presence of salt, and the rivers which go in the sea give minerals with them, and the rocks are also present in it in the mineral form. So that's why it's saline. यस शुभम। Rate of evaporation is also affect the salinity of any sea. The largest sea in Dead Sea, whose percentage is 240%. 240% salt content है इसमें। यस पम्मी। Where water bodies do not live in Dead Sea because the salinity of water. Ocean currents also affects it. The fresh water also affected. If we add fresh water in this ocean, then it becomes less. हाँ, तो सी वाटर सलाइन क्यों है? ये आप लोग को मन में बचपन में या अभी भी, अब तो नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको बता दिया गया है। तो मेरे मन में बहुत आता था कि नमक आया कैसे, तो लोग बहुत सारी कहानियां बताते थे कि एक चक्की था वो गिर गया था, आप लोग भी सुने होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ कि आज से हजारों लाखों करोड़ों सालों से जो नदियां अपने पानी को कहाँ ड्रेन कर रही है? ओशियन में ड्रेन कर रही है, और अपने साथ जब जाती है तो रॉक्स को काटते हुए, इरोजन करते हुए जाती है, तो उनके साथ कैल्शियम भी जाता है, सोडियम भी जाता है। नमक है क्या? सोडियम क्लोराइड, NaCl।
और हजारों सालों से पानी तो इवोपरेट होकर बादल बन जाता है, लेकिन वो मिनरल जो है उसी में उसी में चला जाता है। तो वही धीरे धीरे जो है हाँ सेलाइन हो गया बट चलिए सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशल के लिए, व्हाट कॉजेज वेव्स, वेव्स क्यों आते हैं? पानी में लहरें आती है ना समुद्र में, क्यों आती है? Waves is downfall on the ocean and sea. It is caused due to movement in the earth of ocean beds. यस प्रकाश यादव सिट डाउन। Waves are waves up and down movements on the earth. waves are caused by the gravitational force of वो तो tide होता है. tide. Waves are ड्यू टू द रोटेशन ऑफ Yes, sir. जो पृथ्वी रोटेट कर रही है उसके कारण क्या होता है, कैसे आप जब गाड़ी चलती है तो रुमाल निकालते हो तो पीछे की ओर जाती है, जाती है ना? तो हाँ, तो उसी के कारण जो वेव्स है पृथ्वी के रोटेशन के कारण, हवा भी उसी के अनुसार चलती है। Yes, sir. जो हम लोग देखते हैं हवा चल रही है, एयर चल रही है, वो किसके कारण चलती है? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। ओके सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अभिनव पटेल के लिए, व्हाट इज सती रूल और व्हेन इट वाज एबोलिश्ड? सती सिस्टम क्या था? Sati was a dispensable social evil in which the widow had to burn in a funeral pyre of her husband. If she resists, then she is Forcefully. forced to do so. It was the Raja Ram Mohan Rai, who the founder of Brahmo Samaj and a great reformer of 19th century, worked hard to abolish this system in 1829. यस However, today also there is some existence of it. नहीं, आज तो एग्जिस्टेंस सती सिस्टम का देखने को नहीं मिलता है कि उसके पहले सती सिस्टम क्या था, तो उनके चिता पे जला दिया जाता था। जब हस्बैंड की मौत हो जाती थी तो वाइफ को फोर्सफुली उसी पे जला दिया जाता था। और राजा राम मोहन रॉय जब इसको देखे, जब वो आए थे बंगाल, तो इन्होंने विरोध चालू किया और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स उन्होंने इसे बैन करवाया, कानूनी रूप से बैन करवाया। बुक में दिया था, अभी भी है, बुक में दिया है। हो सकता है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजिकल ये में दुनिया में इतने मॉडर्न लाइफ में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे इस प्रकार का इनह्यूमन प्रैक्टिस जो ना कि एथिकल और ना ही मॉरली सही है, किसी को भी जिंदा ये कर देना। ओके सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये बताएंगी पम्मी पटेल, पम्मी गुप्ता। In democracy, the simple meaning of democracy is of the people, for the people, by the people. People chosen its leader. लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। और बताइए डेमोक्रेसी के बारे में, कौन कौन से देश डेमोक्रेसी अपनाए हैं, कुछ एग्जांपल दीजिए। India is also और डेमोक्रेटिक कंट्री, democratic country, but in North Korea, it is not democratic. हाँ, नॉर्थ कोरिया, चाइना and some other country are not in democracy. Yes. Abraham Lincoln, given by of the democracy is the government of the people. हाँ, ये जो for the people, by the people और of the people, यानी कि डेमोक्रेसी लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए एक शासन है। पहले ये डेमोक्रेसी नहीं था, पहले हर दुनिया में मोनार्की सिस्टम होता था, राजतंत्र होता था। लेकिन आज दुनिया के लगभग हर देश में 95% तो कह सकते हैं उन्होंने क्या अपनाया है? डेमोक्रेसी अपनाया। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, the first country who appointed the democracy is America. हाँ, फर्स्ट जो डेमोक्रेसी अपनाया था कौन सा था? अमेरिका। ओके, It comes from the Greek word Demos. demos, which means people, and the kratos, which means the rule of. हाँ, इसी से बना है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल। यस, In past, democracy is in Greek civilization, 25,000 year old. Greek civilization. यस, Democracy
people elect their own representatives or leader. तो डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पावर होता है। आप जैसे अभी देखें कि डेमोक्रेसी, डेमो मतलब होता है पीपल, और क्रेटर जिसे क्रेसी बना है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी लोगों का गवर्नमेंट। हम लोग अपने नेता को चुन सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमें कुछ अधिकार मिलता है और हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं अगर पसंद आया तो हम लोग अपने मिस्टेक को सुधार भी सकते हैं अगले इलेक्शन में। ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पम्मी जी बताएंगी, व्हाट इज डिक्टेटरशिप? Dictatorship is an autocratic credit of the government. It is done by the group of leader. In democratic, no other government is formed. तो डिक्टेटरशिप क्या है? एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जहाँ पे एक आदमी के पास या एक ही पार्टी के पास सारा पावर हो, जिसको पावर से हटाना लगभग इम्पॉसिबल हो। जैसे आप हिटलर का सुने होंगे, हिटलर ने क्या किया था? नाजी पार्टी का जो ये था, एक लीडर था, वो एक डिक्टेटर था। और कुछ डिक्टेटर का नाम बता सकते हैं आप लोग? नॉर्थ कोरिया के आप लोग सुने होंगे, अभी उनका काफी नाम आता है, किम जोंग उन। उनके पिता भी थे किम जोंग इल। हाँ, वो सारे क्या है, उनको हटाना वहाँ से इम्पॉसिबल है। भारत में जो है हर इलेक्शन होता है हर स्पेसिफिक 5 ईयर में, और आप अपने लीडर्स को बदल सकते हैं या फिर से वही चुन सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई डिक्टेटरशिप में यह भी होता था जो रात में तो सोचे तो दिन में भी लागू कर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में ये होता है कि फैसला जल्दी होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि रात में सोचा और दिन में लागू कर दिया, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप में ही हो सकता है। डिक्टेटरशिप के बाद, लेकिन अगर आप भारत में कोई लॉ बनाना है या कानून बनाना है तो इसका एक प्रोसीजर होता है। आप लोकसभा जाओ, राज्यसभा जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, टाइम तो लगता है। डेमोक्रेसी के लिए इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा समय लगता है किसी भी डिसीजन में लेने में, लेकिन डिसीजन जो निकल के आता है वो बेटर होता है, समझ रहे? और डिक्टेटर में क्या होता है? जल्दी तो होता है। आज डिक्टेटर हिटलर ने सोचा कल हमला करना है पोलैंड पे, उसने कर दिया, लेकिन ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। हिटलर lived in Germany. हाँ, जर्मनी का रहने वाला था हिटलर। And he died in 1939 in the नहीं, 1939 में तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो हाँ, 1945 में खुद को उसने शूट कर लिया था एक बंकर में। आत्महत्या कर लिया था। बैठ जी। Dictator came power by force, and when the dictator power is as well as when the force can retain them. There is only one individual who is answerable to himself. हाँ, There ये is no other role of any people characteristics. ये भी कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो डिक्टेटर में जो लीडर होते हैं वो फोर्सफुली चुने जाते हैं, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते। और कब तक वो पावर में रहते हैं? जब तक उनके पास पावर है तब तक वो ये पावर में ये बने रहेंगे, डिक्टेटर बने रहेंगे। ओके, सिट डाउन। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको हम देना चाहेंगे प्रकाश यादव को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? आप लोग हाथ डाउन कीजिए, अभी इनको सोचने दीजिए। हिंदी में बताइए, क्या आपको कुछ मालूम है, आइडिया है कि नहीं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे अभी हमको मालूम नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, चलिए आप लोग में से बताइए। सृष्टि श्री। All the adults, all the people are allowed to vote. The minimum age of an adult is 18 years old. He can vote in this age. In India, after every 5 years, government start their elections, so people come in this. It is also important for represent their opinions as they want. तो क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यानी राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन सबको नहीं देखा जाएगा और सभी को वोट देने का अधिकार मिलता है। और जरूरी नहीं कि 18 साल ही हो, वो हर देश का अलग अलग होता है। कहीं पे जाइएगा यूरोपियन कंट्री तो 21 ईयर है कि 21 साल के ऊपर से आप वोट दे सकते हैं। भारत में ये कितना है? 18 ईयर। आप 18 साल के हुए, आप महिला है, पुरुष है,
आप कोई भी कास्ट के हैं, कोई भी रिलीजन के हैं, अमीर है गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका वन वोट वन वैल्यू, आपका वोट जितना वैल्यू होगा वो हर सिटीजन का वैल्यू उतना ही होगा, सेम होगा। यस, women get vote to right in 1951. हाँ देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, आपको गर्व होना चाहिए कि जैसे ही आज़ाद हुआ, जैसे ही फ्रीडम मिला हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उससे पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, महिला को भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हर देशों में नहीं हुआ। जैसे कि आप यूरोप पे, फ्रांस पे चले जाइए, आप सुने होंगे फ्रांस रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, उस समय हुआ था। लेकिन औरतों को वोट देने का अधिकार 1942 में मिला, 1942 या 46 कंफर्म नहीं है, लेकिन उस समय मिला था, बहुत सालों के बाद। 1951. फ्रांस का कह रहे हैं, इंडिया का तो जैसे ही हम लोग ये हुए थे, आजाद हुए थे, हाँ पहले ही इसमें। ओके, सिट डाउन, बोलिए। Sir, question not repeat करिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, Universal adult franchise is a rule, is a law where the adults are allowed to vote. It is no country can claim itself that it is democratic without. सही बात है। एक इसेंशियल थिंग है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर किसी देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया जा रहा है, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। Before the people who at certain level of property and education are allowed to vote. This is called manhood support. Yes. No government can claim on it. नो गवर्नमेंट कैन, Claim that. हाँ कोई भी क्लेम नहीं करता, कोई आपसे ये अधिकार छीन नहीं सकता, क्योंकि अगर ये छीनेगा तो आपका देश डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक का एक इसेंशियल फीचर होता है, जैसे राइट टू वोट, आपको अधिकार मिलेगा वोट देने का, जैसे राइट टू इक्वालिटी हुआ, जैसे मान लीजिए किसी देश में, अब जैसे चाइना है, चाइना में भी इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ एक ही पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसी के दो लोग खड़े होंगे और उनमें से ही ए चुनाया जाएगा या फिर बी चुना जाएगा, तो अल्टीमेटली जीता कौन? वही पार्टी। यानी वहाँ पे लोगों के पास राइट टू चूज नहीं है, चुनने का अधिकार। भारत में देखिए कितने प्रकार की पार्टियां हैं। भारत एक मल्टी पार्टी कंट्री है, मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया है। लेकिन आप अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। वो डेमोक्रेसी है कि नहीं? अमेरिका नहीं डेमोक्रेसी है, क्योंकि दो, कम से कम दो होना चाहिए। अब हमारा देश इतना डाइवर्स है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो हम लोग दो पार्टी सिस्टम हो सकता है यहाँ पे? नहीं हो सकता। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी रहती तो बाकी कल्चर को कौन ये करता देखता। तो इसीलिए भारत जो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। अमेरिका के पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी वहाँ के हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन भारत के हेड कौन होते हैं? अगर गवर्नमेंट का हेड कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर। नेशन ऑफ दी हेड होते हैं, वो हेड ऑफ द नेशन होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी से हाथ उठाएंगे। राइट, टेल और नोट ऑन इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है भारत में, उसका प्रोसेस बता रहा है। Yes, Suam. In a democratic country, election is very essential because in democracy country, people choose their opinion and which government. Then it called democracy. When people does not choose their opinion, by force any people have make a government, then it is not called a democracy. Election held होता है every 5 years in our country India. हर 5 साल में भारत में इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है? यस। Votes collected in EVM machine. हाँ, पहले जो इलेक्शन होता था ना वो बैलेट पेपर से होता था, बताए थे हम। लेकिन आज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM पे होता है। वेरी गुड। In America, election commission conducts the election. हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन भारत में कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग।
in the time of election, the total power of any prime minister or any minister have go to government, मतलब election commission. हाँ, ये भी सही है। इलेक्शन के समय जो भी मिनिस्टर होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको पावर को ले लिया जाता है, क्योंकि कहीं वो ये ना कर दे, मिसयूज ना करे उस पावर को, और दे दिया जाता है किसको? इलेक्शन कमीशन को। जितने भी डीएम होते हैं, जितने भी एसडीएम होते हैं, वो किसके अंदर में काम करने लगते हैं? इलेक्शन कमीशन के। India has largest constitutional assembly. हाँ, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कह सकते हैं। And for the election, we divide the states into many several parts, which are known as electoral communities. And the name of people in which the name of people is written is known as voter list. Okay. Sit down. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाजिद के लिए, नेम द गैसेस व्हिच आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। Atmosphere find many gases like nitrogen. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, कितने परसेंट? 78%. 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। Oxygen, it is a vital gas. It is atmosphere 21%. Nitrogen and oxygen, only two gases to make a 99%. दो गैस मिलकर 99% है हमारे एटमॉस्फेयर में। And third is ultraviolet rays, who is harmful for our skin, who protect the ozone layer. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रे से। And the carbon dioxide is 0.03%. आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, हाँ बहुत सारे गैसेस हैं etc. Add up to made the 1%. हाँ रिमेनिंग। और कोई बता सकता है नाइट्रोजन के क्या एडवांटेज है? Protein of plant. वो तो सही, वो तो फर्टिलाइजर का काम करता है। वो एटमॉस्फेयर में क्या काम है उसका? जो वातावरण में 78% है नाइट्रोजन, उसका कोई यूज नहीं है। वो है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होता ना तो आग लग जाता दुनिया में, क्योंकि ऑक्सीजन, आप लोगों को मालूम है ऑक्सीजन जो है ना वो आग लगने में हेल्प करता है। आग बुझाने में हेल्प करेगा। आग बुझाने में हेल्प करता है CO2। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं उसमें कौन सी गैस रहती है? CO2। वो बुझाती है और ऑक्सीजन गैस लगाती है, आग लगाती है। तो अगर नाइट्रोजन डाइल्यूट नहीं करता उसको तो वो इतना डेंस हो जाते हैं और दुनिया जल जाता। इसीलिए वो जरूरी है। और ये जैसे कहे कि वो फर्टिलाइजर के भी बहुत अच्छे होते हैं। यूरिया जो होता है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सहज, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? When the solar energy means the sunlight of the sun when comes to the earth, then it's come to land and sea. Then it's evaporate and the atmosphere through its hot air and then it's come to atmosphere and atmosphere reverse it, and then this outgoing may be blocked by some gases like methane, carbon dioxide, etc. Then the earth is heated by this process. Then this process is known as greenhouse effect, and the carbon dioxide is the main gas of it. हाँ, कहने में थोड़ा सा ये हो गया लेकिन बात इनका पूरा सही है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है जिन गैसों के कारण बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस, जैसे CO2 जो है उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं। उसे छेद, सुनिए ना, बोला जाता है कि ओजोन में छेद हो रहा है। और ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौशल, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? कौन कौन से लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के? There are 5 types of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. एक्सोस्फीयर। सबसे नीचे कौन सा होता है? Troposphere. Troposphere is first layer of the atmosphere. It extends about 80 km. And second layer is stratosphere. It extends about 50 km. And mesosphere is
above the stratosphere and its extend to 80 km and fourth layer is mesosphere and fifth layer exosphere. In the two poles, on the two poles, the troposphere is thin, and the equator, the troposphere is thick हो जाता है, और पोल्स पर जो होता है पतला लगता है. Sir, exosphere about 14 km above and ionosphere less than the 400 km. 400 किलोमीटर, नॉट 40, 400. एक्सोस्फीयर हिंदी में बता सकते हैं आप लोग नाम? ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे छोप मंडल कहते हैं, ये हिंदी में मालूम रहना चाहिए. जैसे समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, वायुमंडल होता है एक्सोस्फीयर को. ठीक है, चलिए इंग्लिश में याद की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि श्री से. व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या होते हैं? The rocks are the matter which makes our crust, the first layer of the earth. It is also it is made by it makes our earth's crust. जिसका डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, पढ़े थे ना हम लोग? जिसका वेट भी होता है. हाँ, जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसी को हम रॉक्स कहते हैं. चलिए इसको बताएंगे अभिनव पटेल. बैठ दिया. The earth crust is formed by the various type of rocks. Rocks are formed due to composition of minerals. और The minerals. डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कौन कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, igneous रॉक. Cubic rock. ठीक है, ओके, सिट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताएंगी पम्मी जी. व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? Minerals are the chemical substances of rock. और और मिनरल कहाँ से प्राप्त होता है? कुछ मिनरल्स के नाम बता दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए. चलिए वाजिद. Minerals is a chemical substance which form the rock like gold, sulfur, phosphorus. बहुत सारा है, फास्फोरस है, पोटास है, डायमंड है, बॉक्साइट है, बहुत सारे. एग्जांपल की बात कीजिए. It is used to make jewelry. ज्वेलरी बनाया जाता है. ये वायर जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, वायर वो बनाया जाता है. बहुत सारे यूज है. आजकल मिनरल का देख रहे, कोयला भी क्या एक प्रकार का मिनरल ही है. फॉसिल फ्यूल भी होते हैं. What is the most common mineral? सबसे मोस्ट कॉमन मिनरल कौन से है? Quartz. क्वार्ट्ज. सिट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग थोड़ा एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है, एक एक करके. पम्मी जी, प्रोफेट मोहम्मद वाज बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में. वेरी गुड, सिट डाउन. चलिए सृष्टि श्री. गुरु नानक एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल रीजनरेशन. गुरु नानक ने अपना सबसे पहला स्पिरिचुअल रीजनरेशन कब एक्सपीरियंस किया था? हाथ मत उठाइए, ऑप्शन देने दीजिए. 1494 AD, 1495 AD, 1496 AD या फिर 1497 AD? Yes. 1496. Yes, 1496 AD. चल बैठिए. अभिनव, द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे है? दिल्ली, ग्वालियर, अजमेर, जयपुर. सही है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर. आप खड़े. द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ, जिसका मतलब क्या होता है? सूफ का वुड, कॉटन, सिल्क की वूल. वूल ऊन होता है, क्योंकि लोग सूफी लोग जो थे वो ऊन का कपड़ा पहनते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा गया. ओके, प्रकाश जी आप बताइए. कबीर वाज ब्राउट अप बाय, कबीर को किसने पाला था? नीरू, नीसू, नीनू या नबी? नीरू. नीरू जो थे वो क्या थे? उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हैं कोई? यस सर, वो धोबी थे. वासर, जो कपड़े साफ करते हैं, और उन्होंने ही उनको बड़ा किया. गंगा किनारे वो मिले थे. ओके, खड़ा होइए. द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन. आप खड़ा होइए.
लेना है 5 मिनट 7 मिनट। Which gas protect us from ultraviolet ray? Ozone. Very good. Hitler was the dictator of Germany, UK, France, USA. Germany. Sit down. 63. Which country is secular? इसमें से हम 4 देश का नाम बता रहे हैं, बताइएगा सेक्युलर कौन सा है? हाँ, इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष। इस राज्य का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ना सरकार जो वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, ना रिलीजन को सरकार में इंटरफेयर। लैंग्वेज। सिट डाउन। यस पम्मी। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर डोमिनेटेड इन नॉर्दर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की नॉर्थ अमेरिका। हाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे है? नॉर्दर्न अफ्रीका में, जो सहारा वाला रीजन है। चलिए कुछ ट्रू एंड फॉल्स कुछ एक करके। एडवर्टाइजिंग हैज अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन अस। ट्रू है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है आज के लाइफ में देख रहे हैं, हमारे हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही है जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एंड स्पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एंड स्पोर्ट, पब्लिक और स्पोर्ट का कहीं एडवर्टाइजमेंट है, जब नहीं होता पोलियो का हुआ एडवर्टाइजमेंट, तो ये क्या इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट है? ट्रू है। ये फॉल्स है, ये सोशल एडवर्टाइजमेंट है। ये कैसा एडवर्टाइजमेंट होगा? सोशल। कौन सा? प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। लोगों के बेनिफिट के लिए किया जाता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। देखिए, अपने भलाई के लिए ना करते हैं, सोशल एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जिससे लोगों का भला हो। सरकार पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट करती है 2 बूंद जिंदगी के लिए, वो किसके भले के लिए कर रही है? पब्लिक के भले के लिए। तो वो एडवर्टाइजमेंट को कहा जाता है सोशल एडवर्टाइजमेंट। अरे प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कोई कॉफी बेच रहा है, कोई कोका कोला बेच रहा है, प्रमोशन ऑफ गुड्स, तो क्या वो सोशल है? नहीं। हाँ, वो सोशल नहीं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन सरकार कहती है कि हाँ फ्री में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा चीज, तो वो क्या हो जाता है? सोशल हो जाता है। ओके, सिद्धार्थ। क्वेश्चन इज द मेन आइडिया बिहाइंड commercial advertisement is to promote the interest of the advertiser। एडवर्टाइजर के भले के लिए प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। सही बात है। कॉमर्शियल नाम में ही लगेगा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब फायदा कमाने के लिए। और कोई भी कंपनी जो है वो पैसा लगा रही है तो फायदे कमाने के लिए कर रही है कि आज हम लगा रहे 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो उससे हमको 10 का 100 बन जाए, इतना हमारे पास हाँ कंज्यूमर आ जाए। ओके, सिट डाउन। यस सर। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपका क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेटिक ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड कंसेंट ऑफ पीपुल आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या था? ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है किसमें? डेमोक्रेटिक। तो ये गलत है, सही बोले आप, फॉल्स है, क्योंकि लोगों का डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल। हाँ, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। ये किसने दिया था? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कहा था ये जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से। चलिए प्रकाश। द एग्जीक्यूटिव डील विद द एक्चुअल मेकिंग ऑफ द लॉ। एग्जीक्यूटिव जो है वो देश के लिए कानून बनाते हैं। सही है कि गलत? चलिए सुंदरम, गलत है। कैसे? हाँ, वो कानून देखिए बनाने का काम कराया जाता है, पार्लियामेंट बनाता है कानून। एग्जीक्यूटिव में जैसे कौन से आ जाते हैं? 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे IAS ऑफिसर हो गए, DM हो गए, SDM हो गए। तो इनका काम कानून बनाना नहीं है, इनका काम है कानून का पालन करवाना है, एग्जीक्यूटिव का। चलिए सिट डाउन।
टाइम देख लीजिए। हाँ, और 2 टुकड़े। नेक्स्ट, शुभम। डेमोक्रेसी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। क्या डिस्क्रिमिनेशन है जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है डेमोक्रेसी में, नहीं होता मेल और फीमेल पे, क्या उसको प्रोहिबिट करता है, बंद करवाता है डेमोक्रेसी? सही बात है। डेमोक्रेसी आपको अधिकार देता है, और किस चीज का अधिकार देता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी। यानी कहता है कि कानून के नजर में मर्द और औरत बराबर है। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज showing advertising in the media require lots of money। सही है कि गलत? बोल रहा है showing advertisement in the media require lots of money। बोल रहा है मीडिया में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है तो बहुत पैसे लगते हैं। सही है कि गलत? अरे फॉल्स सही है, क्या कर रहा है? फॉल्स है। ट्रू है। अगर आपको किसी न्यूज चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल पे एडवर्टाइजमेंट देना है तो बहुत ही महंगा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये हमारा जो ये था क्या स्टेटमेंट जो था वो ट्रू था, लॉट्स ऑफ मनी लगता है। ओके, तो आज का हमारा डिबेट यही तक होगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग मिला जाएगा इंग्लिश लिटरेचर का। ये भी जो है नेक्स्ट वीक हम प्लान करते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका हम लोग लिया जाएगा, नए बच्चे आएंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग भी रेडी रहेंगे। ओके, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज का। तो अब इतना जल्दी जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस बताना है हमको। तो जो हमको इनिशियल में लग रहा है ऐसे तो सभी अच्छे थे, सभी ने अपनी अपनी जगह अच्छा दिया, लेकिन एक होता है ना 19 और 20 एक का अंतर, तो उसमें हम चुनना चाहेंगे सृष्टि श्री को। ताली बजाइए। चले तुम ये मोमेंट वहाँ सृष्टि खड़े हो जाएं आप लोग, साइड में खड़े हो जाएं। नहीं, जो बैठे थे उनको भागी अपना रहे। ताली बजाइए। वैसे ही वैसे ही रहिए। अभी पिक्चर ले लें, ऐसे ही रहिएगा। एक मिनट। चलिए एक बार और जोरदार ताली बजा दें आप लोग।